ہاں جو آپ کا عقیدہ ہے جی قبر پہ جا کے آپ اللہ کی قبر پہ جا کے آپ جو مانگتے ہیں ان سے ڈائریکٹلی جی آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں ہماری بات سن کے. ٹھیک ہے, یہ ہماری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہماری تکلیف کو دور بھی کر دیتے ہیں, ہماری پریشانی کو دور بھی کر دیتے ہیں, ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا یہی تو عقیدہ ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ؟ ہاں ہاں اس سے ہٹ کے ایسا ہے نا, آپ بیان کرو گے تو کچھ کم و بیشی کر دو گے اس میں. میں نے بتایا ہے, آپ بتا دیں اگر کچھ ہٹ کے لگ رہا ہے تو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا عقیدہ ہے ان سے مانگنے کا, مدد کا, کیا آپ ان سے مدد مانگتے ہیں؟ سنیے, ہم اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کے اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے, یا ان کا جو بھی نام ہوتا ہے نام لے کر جی جی کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, اچھا, اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں. ٹھیک ہے بھائی, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں آپ. ہاں ہاں ہاں. تو آپ انہیں نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں, ہماری مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ہاں, اللہ سے ہٹ کر سنیے, اللہ سے ہٹ کر وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں, یہ ہمارا عقیدہ. اور اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ سے ہٹ کر یہ نفع نقصان کے مالک ہے تو وہ کافر ہے. ہاں, وہ تو اللہ سے تم نے ایک بار کہا کہ ہاں اللہ کے ساتھ جوڑ کے تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے, تو قبر پہ جا کے اللہ مانگتے ہو. اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ سے تو جڑیں گے ہی بھائی, اللہ سے الگ تھوڑی ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو تم ان سے جا کے کہتے ہو کہ یہ پریشانی ہماری حل کر دو, تو وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ تمہاری پریشانیاں حل کرتے ہیں یا مشکلیں ٹال اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے. ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے. ہاں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ دور کر دیتا ہے. اچھا, جو طریقہ آپ یہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں وسیلہ؟ نہیں, وسیلہ بھی ہے اور ایک طریقے سے مانگنا بھی ہے. اس کو کہتے ہیں وسیلہ. نہیں نہیں, یہ مدد نہیں, جو مدد ہوتی ہے وہ یہ والی مدد ڈائریکٹ ہوتی ہے. وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اے اللہ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے ہماری مدد فرما, یہ ہوتا ہے وسیلہ. یہ بھی, ہاں, یہ بھی وسیلے کی, دونوں وسیلے کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سنو سنو سنو, پہلے سن لو. یہ ہم گئے بزرگ کے پاس, اللہ کے نیک بندے کے پاس, تو ہم نے اب اللہ کے اس نیک بندے سے عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے, اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں, اللہ سے ہمارے لیے دعا کروائیں. تو یہ دعا ہم نے اللہ کے جو ہے اللہ کے حضور ان اللہ کے نیک بندوں سے کروانے کے لیے کہا ہے. ان سے یہ بات ہم نے مانگی کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے دعا کریں. لیکن وہ آپ جا رہے ہیں قبر والے کے پاس, اس سے دعا کی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں, ہماری یہ مشکل حل ہو جائے. ہاں ہاں ہاں, تو یہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے کہ بھئی ایسا انبیاء نے کیا ہے یا کسی نے کیا ہے, کہ اللہ نے ذکر کیا کہ بھئی کسی کی قبر پہ جا کے اس طریقے سے اس سے اپیل کرنا اللہ کو چھوڑ کے؟ ہاں ہاں, ہے یہ اس کا آپ کے پاس اللہ کو چھوڑ کے. ہاں, مطلب آپ نے اللہ سے نہیں مانگا, ڈائریکٹ آپ قبر والے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے فریاد کر, آپ اللہ سے ہمارا میرا بھائی, ارے میرا بھائی, میں نے آپ کو ابھی اتنی بات صحیح سے سمجھایا, پھر سمجھانا پڑے گا. آپ کہا کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, نیک بندے, اللہ, ہاں, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک بندے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, اللہ کے نیک بندے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن آپ نے اللہ کے بجائے ان سے اپیل کی کہ آپ اللہ کے پاس یہ میری بات پہنچائیں اور ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیں. ہاں, میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, آپ کا ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے, وہ ابھی آپ نے دوسری طریقے سے کہہ دیا نا, میں یہی بات کو چھوڑ کے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں. میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ سے نہیں کیا, سیدھے قبر والے کے پاس گئے, قبر والے سے آپ نے اپیل کی کہ آپ اللہ سے ہمارا یہ کام کروائیں, ہمیں یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, یہ دور کروائیں. تو انہوں نے, اب وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, انہوں نے کیا دعا کی نہیں کی وہ تو اللہ کو پتا ہے, کہ معاملہ حل کروایا نہیں کروایا وہ تو اللہ کی مرضی ہے. آپ نے ان سے اپیل کی جا کے جو قبر والے ہیں. تو یہ وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ عقیدہ آپ کا قرآن یا حدیث میں موجود ہے کہیں کہ کوئی قبر پہ گیا ہو, یا اللہ کے پیغمبر گئے ہوں, یا صحابہ اکرام کسی کی قبر پہ گئے ہوں اور انہوں نے اس طریقے سے کہا ہو کہ آپ یہ میرا مسئلہ حل کروائیں اللہ سے قبر پہ جا کے کسی سے؟ اس کا کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ بالکل ہے, پیش کریں. اللہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ تمہارا مددگار ہے, اور جبرائیل امین اور نیک مومنین اور فرشتے بھی مدد پر. اس لیے ہم نے عرض کی, اے اللہ کے نیک بندو, اللہ سے ہمارے لیے بھلائی طلب کرو.
वो जो सूरह तहरीम की आप आयत पेश कर रहे हैं वो तो इस तरीके से निकलता नहीं ना। मैंने तो कब्र पे जाने की बात की है कि कब्र पे जाके उस बंदे से आप तलब कर रहे हैं, ये तो इसमें कब्र का जिक्र ही नहीं है। तो अल्लाह ने मना नहीं किया ना, अल्लाह ने तो मना किया है, तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसे चाहता सुना देता है। कहाँ पर ही आया? कहाँ? एक मिनट वन मिनट, कहाँ पर ही आया है कि तुम कब्र वालों से नहीं कह सकते? कुरान में लिखा है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसे चाहता है सुनवा देता है। एक मिनट पहले मुझे ये आयत सुनाओ कि तुम कब्र वालों से नहीं मांग सकते, ये सुनाओ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या बात पेश कर... मैं क्या कहा? मैंने ये कहा है कि कब्र वालों से नहीं मांग सकते, ये मुझे अभी कहा ना आपने? मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? क्या है? मैंने यही तो कह के आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा क्या? ये कहा रिकॉर्डिंग में सुन लेना। आपने ये कहा कि कुरान में आया है आप कब्र वालों से नहीं मांग सकते। मुझे अल्फाज सुना दो। ये हद हो गई है यार, तुम्हारे कान इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं। मैंने जो कहा आपने बात ही पलट दी। मैंने क्या कहा है और आप क्या बात बना रहे हैं? भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग में सुन ले आपने। यही कहा तो वो मैंने जो कहा है वो मैं अभी भी कायम हूँ उस बात पे, वो अभी भी कह रहा हूँ। बात तो सुने आप जल्दबाजी कर रहे हैं ना? नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। जो कुरान में लिखा है वो अभी भी उस पर कायम हूँ। चलिए दिखाइए कब्र का नाम कहाँ आया, दिखाइए। पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले। ये वो आयत है, सूरह नंबर 35 है, आयत नंबर 22 है। इसमें साफ साफ लिखा है, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। अब ये साफ साफ मौजूद है, जो कब्रों में हैं आप उन्हें नहीं सुना सकते। यही पूछ रहा हूँ। अरे तो मेरे भाई पूरी बात तो सुन ले, मैं कहना क्या जा रही हूँ। आप इतनी जल्दी आगे से आगे भाग रहे हैं यार। अभी तुमने एक बात पहली बात गलत कर दी। मैंने क्या कहा है? मैंने सुनो, ये कहा, सुनिए, आपने ये कहा कि कब्र वालों से नहीं मांग सकते। आपने गलत कह रहे हैं। मैंने ये बात गलत कह दी। मैंने ये कहा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मैंने कहा ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। हाँ तो ये तो आपकी मेरे मुंह में अपना लुकमा क्यों, आप मेरे मुंह में अपना लुकमा क्यों दे रहे हैं भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात होगी, मैं कहूँगा ना मेरी बात क्या है। आप क्यों कह रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आपने गलत कहा ना, इसलिए पकड़ लिया मैंने। अरे मैं तो मेरी बात आप सुन ही कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप उल्टे चल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? कि कब्र वालों से नहीं मांग सकते, कुरान में लिखा है। ये गलत कह रहे हैं आप। मैंने ये कहा ही नहीं है। रिकॉर्डिंग में मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने जो कहा है मैं अब भी उस पर कायम हूँ। अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसको, जो आपकी समझ में आ जाए। सुनाऊंगा वो भी समझ जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, वो मैं बात आपके लिए फिर दोहरा रहा हूँ। सुनो, यहाँ तो आप झूठ बोले। चलिए बताइए कि क्या कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात फिर दोहरा रहा हूँ, वो अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आई है। आप अपनी तरफ से बात आ गई, वो मेरे समझ में, मुझे पता आप निकल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है। ये मैं कह रहा हूँ। आपने उसका क्या बना दिया? तो एक मिनट, आपने उसका क्या बना दिया? नहीं, ये दिखाओ कि कब्र वालों को हम नहीं सुना सकते। हाँ तो ये तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है ना। ये आयत आपको चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा आपके नंबर पे। बिल्कुल ना, तो फिर तर्जुमा भी सुना दो ना, थोड़ा सा। तर्जुमा तो मैंने आपको सुना दिया है। ये आयत ये तो आपने अपनी बात की रखी है ना, झूठी। ना, ये तर्जुमा ही है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते। ये तर्जुमा ही है उसका। अभी अपनी बात चल रही है, अभी आप तर्जुमा पेश करो। तर्जुमा यही है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है। हाँ, कब्र का नाम आया, वो सुना। हाँ, बिल्कुल कब्र का नाम आया, जो मैं बता रहा हूँ। आप उस पर यार बिलीव करें या फिर मेरा इंतजार करें, मैं व्हाट्सएप करूंगा आपको। आप आयत नंबर, एक मिनट, कुरान खोल लें आप। आयत नंबर बता दें, सूरह बता दें, आयत नंबर बता दें। कुरान इस टाइम में कहाँ बैठा हूँ मैं? जो हवाला भेजूंगा आपको, अगर ये ना निकले तो आप पकड़ लेना मुझे, मैं यही हूँ। भाई आप एक मिनट, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ। अभी आपने रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब आप जिसे सुनाएंगे वो उसे लगेगा कि हाँ इन्होंने कुरान का जवाब दिया है, लेकिन ना आपने कोई आयत भेजी है, ना सूरत बताई है कौन सी है, ना आयत बताई है कौन सी। चलिए मैं कुरान खोल लेता हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं आयत नंबर बता दो, सूरत बता दो कि अल्लाह ऐसा किस सूरत में फरमाता है कि तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते। मैंने आपको तर्जुमा पेश कर दिया, आपको इसकी दलील चाहिए और ये भी बता देना, और ये भी बता देना कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्हें। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे तो मैंने बताया तो आपको। हाँ, उन्हें ये मत बताना जो है मुनाफिक हैं उन्हें, या फिर किसी और को। ये बताना जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें। अच्छा, वो आपके नफे नुकसान के मालिक नहीं है। मैंने आपको ये कितनी बार दलील भेज दी सूरह मायदा की।
कितनी हाँ बार? वो तो गैर मुस्लिमों के लिए खिताब है ना उनके सूरह जो माइदा है की, तो ये गैर मुस्लिमों के लिए है क्या कुरान? ना, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए है ना कि अल्लाह फरमाता है जिब्रील मददगार है हाँ, मुसलमानों के लिए है। तो जिब्रील मोमिन- मददगार हैं, तो इसका इनकार हाँ, कौन है? वो तो मोमिनी- अल्लाह ताला ने मदद की हुई है जिब्रील के जरिए, लेकिन जिब्रील को पुकारना, हम तो नहीं पुकारते अच्छा। जिब्रील अमीन को। आप हाँ, पुकारते हैं हाँ। मदद के लिए, हाँ हाँ लेकिन अल्लाह ताला लगाता है ड्यूटियां फरिश्तों की, मदद करता है अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए। ये दिखा दे कि जिब्रील को नहीं पुकार सकते, ये दिखा दे कुरान में। हाँ, तो कुरान में तो लिखा है ना। कहाँ मैं सूरह नमल बता तो दिया आपको, सूरह नमल आयत नंबर 5। सूरह नमल में तो ये है ना कि जो है जिन्हें तुम पुकारते हो, किन्हें पुकारते हो, खुदा को जो है खुदा बनाते हो, अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा बनाते हो, ये है ना नमल में। इसमें ये नहीं है कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है, फरियाद। अब और आगे यही फरमाता है अल्लाह इस सूरत में, आगे यही फरमाता है, और जिसे तुम अल्लाह के साथ खुदा बनाते हो। पूरी पेश कर रहा हूँ, आप सब्र करें ना, सब्र करें, क्यों इतने उतावले हैं? मैंने क्या कहा? कौन है जो कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उसे पुकारे? मतलब बेकरार की जो फरियाद है तो वो कौन कबूल करता है? जब वो उसे पुकारे। आगे बढ़े। उसकी तकलीफ को, पुकार सुन के उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें खलीफा बनाता है अगलों का। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जो ये काम कर सकता है? ये मुझे बताया कि ये किसका अकीदा था? हाँ, ये तो गैर मुस्लिमों का अकीदा है ना कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी है। ये अल्लाह ताला टोंट कर रहा है कि जो ये काम नहीं भाई, हमारे लिए फरमान नहीं है ये, क्योंकि भाई बात तो पूरी मुकम्मल नहीं हुई मेरी बात अभी। मेरी बात पूरी सुने ना आप, अभी आगे से आगे बोलते हैं यार, मेरी बात पूरी हुई नहीं है। आपकी बात अलग हो जाती है तो मैं बोल जाता हूँ। मेरी बात तो पूरी सुन लेना आप अभी सुना रहे हैं यार। जब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें खलीफा भी बनाता है, कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है जो ये काम कर सकता है? इसका क्या मतलब? कोई ऐसा कोई भी नहीं है, एक मिनट, ऐसा कोई भी नहीं जो ये काम कर सके कि तुम्हारी फरियाद को सुने। वो अल्लाह के सिवा औरों को खुदा बना हुए थे, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि और कोई भी है जो जिसे तुम अल्लाह के साथ खुदा बनाए हुए हो। अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई और भी है, कोई और खुदा भी है जो ये काम कर सकता है, यानी कि तुम्हारी फरियाद सुने और तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दे। क्योंकि वो खुदा बनाते थे ना, वो खुदा मान लेते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया, अब जैसे अपना बुतों को खुदा मान लिया। मैं मिसाल दे देता हूँ, मिसाल दे देता हूँ आपको। आप जैसे किसी कब्र वाले के पास गए, उनसे फरियाद की आपने, अब इसमें साफ लिखा बेकरार की फरियाद सुनता है और उससे उसकी तकलीफ दूर कर देता है। यहाँ मत जोड़ें आप, एक मिनट। तो आपने उससे फरियाद की और उसकी तकलीफ आपने दूर, उस बंदे ने दूर कर दी, तो अल्लाह ताला इसको कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा जिसे तुम समझ रहे हो कि जो तुम्हारी फरियाद सुने और तकलीफ दूर कर दे, तो तुमने उसे खुदा बना रखा, तुमने बना रखा। तो तुम उसे ना मानो, खुदा तो तुम कहेंगे रहो। खुदा कहाँ बनाया बताओ? खुदा बनाया खुदा? अल्लाह तो कह रहा है ना खुदा बना रखा है तुमने उसको। तो यार अल्लाह तो उनसे कह रहा है ना जिन लोगों ने खुदा बना लिया है, हम तो खुदा बनाते ही नहीं है। हाँ, तो बेकरार जो फरियाद करता है, तुम ही तो फरियाद करते हो ना जाके वहाँ पे। आप ये इल्जाम लगा रहे हो हम पे कि तुमने फरियाद की तो तुमने खुदा बना लिया। इल्जाम है आपका हम पे। अल्लाह ताला तो साफ कह रहा है ना बेकरार की फरियाद कौन सुनता है और तकलीफ को दूर कर देता है? अल्लाह करता है। हाँ, ये सब अल्लाह करता है। और जिसे तुम ये समझ रहे हो ये काम और कोई भी कर सकता है, तुम समझ रहे हो ना ये काम और कोई भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे भी खुदा समझ रहे हो। के अलावा खुदा मान लिया। हाँ, तुमने उसे अल्लाह के सिवा मेरा मान लिया। अल्लाह के अलावा खुदा किसी को नहीं माना है, अल्लाह का खिताब ही हमसे नहीं है। हाँ, तुमने नहीं माना है तो तुमने ये काम क्यों करा कि उनसे जाके फरियाद की? तुमने उनसे जाके फरियाद की कब्र वालों से और अपनी तकलीफों को उन्हें सुनाया और पुकारा उन्हें, और तुमने ये समझा कि हमारी पुकार सुनेंगे और हमारी तकलीफ दूर कर देंगे, तो उन्हें तुमने समझा, तो इसका मतलब तुमने उन्हें खुदा बना दिया। नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है क्योंकि नेक मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं, जिब्रील तुम्हारे मददगार हैं, फरिश्ते भी मदद पर हैं, तो भाई हम मदद के लिए ही तो उनसे कहेंगे जब मदद पर हैं। हाँ, मदद पर हैं, तो जो जिब्रील मदद पर हैं तो वो मदद पर अल्लाह ने लगाया है, आप उन्हें पुकारेंगे नहीं। कहाँ ये पुकारने को मना करा ना अल्लाह ने? नहीं, एक मिनट, पुकारने को तो मना करा है सूरह नमल में, कहाँ करा? ये लिखा नहीं है? पुकार को तो गैर मुस्लिमों को सुनता है और तकलीफ को दूर कर देता है। ये तो उनसे है जो खुदा मानते हैं, उनसे, हम तो खुदा नहीं मानते। आप खुदा ना माने, पुकार तो रहे हैं ना, जो पुकारेगा वो खुदा मान रहे हैं ना। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो। वो खुदा माने या ना माने, आप या गैर मुस्लिम पुकारे या मुस्लिम पुकारे, जो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी कि पुकार के ये सोचेगा कि मेरी पुकार को सुन के मेरी तकलीफ़ दूर कर देगा, तो वो उसे खुदा समझ रहा है। चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, मुनाफिक हो, यहूदी हो, नसारा हो, जो कोई भी हो, ये कुरान सबके लिए है। ये कुरान खिताब जो करता है ये सबके लिए करता है। अगर मुसलमान जुल्म करेगा तो वो क्या जुल्म की कैटेगरी में नहीं आएगा? वो भी जुल्म होगा,
क्योंकि मुसलमान कर रहा है, और अगर गैर मुस्लिम कर रहा है तो वो भी जुल्म है। तो आप करेंगे तो आप बच जाएंगे क्या? आप भी फंसेंगे, आप भी जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, चाहे वो कोई भी हो, वो उसे पुकार रहा है गैरुल्लाह को, तो वो उसे खुदा समझ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, काफिर हो या मुसलमान हो। ठहर जाइए एक मिनट, अब यही ठहर जाइए। आपने अभी क्या कहा कि जो पुकारेगा उसने खुदा मान लिया। जो पुकारेगा अपनी तकलीफ बयान करेगा कि मुझे ये तकलीफ है, और उसकी तकलीफ को वो सोचेगा मेरी तकलीफ ये दूर कर देगा, इस तरीके से जो पुकारेगा उसने खुदा मान लिया। हाँ, जो ये सोचे, ये लिखा हुआ तो है। ये सूरह नमल आपको दिखाई नहीं दे रही? जो कौन है जो बेकरार है तो अल्लाह उनसे मान रहा है जिनने मान लिया है। आप ये उसूल बयान कर रहे हैं कि जो पुकारेगा उसने खुदा मान लिया। ये उसूल ही बताया गया है। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है? नहीं, अब अल्लाह ताला पे ये कह रहा है कौन है? कोई है ऐसा? आप पहले जुमले पे गौर करें ना, कोई है ऐसा जो पुकार को सुनता है बेकरार की? ये लिखा है इसमें साफ साफ सूरह नमल आयत नंबर 62 में। कोई ऐसा है दुनिया में मौजूद जो पुकार को सुने और उसकी तकलीफ दूर कर दे? ऐसा कोई है? तो आपने ऐसा भूतों को बना रखा है, तो उसे ही तो अल्लाह ताला कह रहा है। एक मिनट, 1 मिनट, अल्लाह ने ये फरमाया कोई है ऐसा जो बेकरार की दुआ कबूल पूरी कर सके, जिसे तुमने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखा है। सुन के दूर कर दे। मेरा भाई 2 मिनट खामोश रहोगे। जिसने बेकरार की दुआ जो पूरी कर सके, कौन है ऐसा जिसे तुमने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखा है? ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये खुदा जिन लोगों ने बना रखा था गैर मुस्लिमों ने, उनसे खिताब हो रहा है। हम तो खुदा नहीं बना रहे, हमसे तो अल्लाह ने ये फरमाया है कि सूरत तहरीम में आयत नंबर 4 में कि जिब्रील तुम्हारे मददगार हैं, तुमसे मदद मांगते हैं, बस उनसे मदद मांगते हो तो अल्लाह ताला ने मदद पे लगाया ना उन्हें। ये जो सूरह नमल है इसको आप शुरू से समझे ना, आप लास्ट का हिस्सा पकड़ रहे हैं कि हम तो माबूद समझ ही नहीं रहे हैं। अरे जो सूरत तहरीम आयत नंबर 4 है, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई नेक फरिश्ते मददगार हैं। वो शुरू से जिक्र है कि तुम्हारी बीवियों ने अगर आपके साथ ये किया तो उनसे कह दो कि मेरा मददगार है अल्लाह, मेरा मौला है अल्लाह, जिब्रील और नेक मोमिनीन। यानी कि अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारे साथ अगर ये करें, आपस में तुम्हारे ख़िलाफ़ जत्थेबाजी करें, तो उनसे कह दो कि मेरा मददगार अल्लाह है और जिब्रील हैं और नेक मोमिनीन हैं। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें मदद पे लगा रखा है। उनके अल्लाह के नबी के ये सारे मददगार हैं। फ़िज़िकल ज़ाहिरी असबाब है ये वो नहीं है कि आप गैब में जाके कब्र वाले से मांगना शुरू कर दें। ये तो कहीं भी नहीं है उस आयत में कि आप गैब में जाके उससे मांगें। अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है उनकी मदद के लिए फ़रिश्तों की। आप उल्टा काम कर रहे हैं कि अल्लाह ने तो ड्यूटी लगाई है मदद के लिए, लेकिन आप उल्टा काम ये कर रहे हैं कि आप उनसे खुद मांग रहे हैं, मदद उनसे खुद तलब कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि आप उनसे मांग लेना और वो तुम्हारी तकलीफ़ें दूर कर देंगे। अल्लाह ताला खुद मदद करता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिसको चाहता है भेजता है, फ़रिश्तों को, वली को, जिसको चाहता है, जिन को वो भेजता है और मदद करता है उसके ज़रिए। तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो जिस तरीके से मदद करे, लेकिन आप नहीं पुकार सकते उनको मदद के लिए। ये इसमें मना है, जो अभी आयत सूरह नमल की पेश की है, इसमें मना है साफ साफ। माबूद मत समझो, माबूद तुम्हारे समझने से कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने उन्हें पुकारा है तो माबूद समझ लिया, तो तुमने उन्हें माबूद समझ लिया। एक मिनट, जो बुत हैं, जो काफिर हैं वो बुत हैं, तो वो बुतों को खुदा बन गए वो उनके। नहीं, ये कहाँ लिखा है जिसे तुमने पुकार लिया वो खुदा बन गए? अरे तो ये लिखा तो है, कौन है कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उसे पुकारे और दूर कर देता है उसकी तकलीफ को। तो जो पुकार को सुन के और उसकी तकलीफ दूर कर दे, तो अल्लाह ताला इस चीज को कह रहा है, जो भी पुकार को सुनता है और तकलीफ दूर कर देता है, ये अल्लाह की क्वालिटी है, ऐसा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। तो तुमने जिस पे ये क्वालिटी फिट करोगे, तुम जिस पे ये क्वालिटी फिट करोगे कि वो तुम्हारी फरियाद सुन के वो तुम्हारी तकलीफ दूर कर देगा, तुमने उसे खुदा बना रखा है। गलत तशरीह मत करो। मैं तो तर्जुमा ही पेश कर रहा हूँ कुरान का, तो पेश नहीं कर रहा, तर्जुमा ही बयान कर रहा हूँ सीधे। अल्लाह ये फरमा रहा है कि किसे तुमने खुदा बना रखा है, और आप ये उसूल बयान कर रहे हो कि अगर तुमने किसी को पुकार लिया तो वो खुदा बन गया। तो ये साफ साफ लिखा है इसमें, कौन कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उसे पुकारे। अरे ये कहाँ लिखा है कि तुमने खुदा बना लिया, जिसे तुमने पुकार लिया वो खुदा हो गया? ये कहाँ लिखा है? अब भाई ये तो आपकी अकल का कसूर है ना, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। मैं कितनी बार आपको बताऊं, इसमें तो ये लिखा है जिसे तुमने पुकारा, जो फरियाद को सुनता है और कबूल करता है दुआ को और तकलीफ दूर कर देता है। ये जिसको तुमने माना है कि कोई भी अगर ऐसा काम कर सकता है, फरियाद सुने और सुन के तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे, तो उसे तुमने खुदा बना लिया है। तो तुम्हारा जिस पे भी ये अकीदा है कि मेरी वो बुजुर्ग
फरियाद सुनता है और सुन के तकलीफ को दूर कर देता है। कहाँ आया? एक मिनट। ना तो कुरान में कहीं ये आया कि तुमने जिसको पुकारा वो खुदा बन गया, जैसा तुम तर्जुमा पेश कर रहे हो। ना ही कुरान में ये आया कि तुम जिस बुजुर्ग को पुकारते हो वो खुदा, उसको तुमने बना रखा है। क्यों जोर जबरिया की जो है, जोर जबरिया के इसमें साफ साफ लिखा है, पब्लिक खुद समझ जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा है। मैं बिल्कुल वही तर्जुमा पेश कर रहा हूँ साफ साफ कि कौन कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर कर देता है। कहाँ पर ये आया है कि जो है अगर तुमने किसी को पुकार लिया वो खुदा बन गया? ये कहाँ आया है? अरे तो पूरी आयत तो पढ़े आप, कबूल पूरी आयत पढ़ी मैंने, नहीं आया है। अच्छा नहीं आया है तो अल्लाह ताला तो ये कह रहा है, ये आया है जो आयत में, अगर जरा सा भी मैं फर्क करूं तो मुझे बताना। आयत में ये आया है कौन है जो बेकरार की दुआ को पूरा करता है, इसे तुमने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखा है। ठीक है, ये आया, ये कहीं भी नहीं आया कि अगर तुमने किसी को अल्लाह के सिवा। ये मैं बता दूं, ये सूरह नमल आयत नंबर 62 है। ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको। भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और तकलीफ़ दूर कर देता है, और जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? तुम्हें बल्कि तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। अब इसमें साफ साफ है भला कौन है वो जो बेकरार की दुआ सुनता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। अब ये क्वालिटी आप जिस पे भी फिट करेंगे, कोई भी बुज़ुर्ग हो, कोई भी वली हो, कोई भी हो, जो ये अल्लाह ताला की ख़ास क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब की है कि मैं ही हूँ जो तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ उसकी पुकार सुन के। अब ये क्वालिटी आप जिस पे भी फिट करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है उसे तुम इलाह समझ रहे हो, इलाह मान रहे हो, खुदा मान रहे हो अल्लाह को छोड़ के। तो आप जिस पे भी ये क्वालिटी फ़िट करेंगे उसे समझ लो आपने इलाह बना लिया, क्योंकि ये अल्लाह की ख़ास क्वालिटी है, आप किसी और को इसका मुस्तहिक नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ही इसका मुस्तहिक है, वही इसीलिए वो बयान कर रहा है साफ साफ कि वही तकलीफ़ों को दूर करता है पुकार को सुन के। कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो ये काम कर सके? तो इसमें यही है साफ साफ कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती कोई नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हारी तकलीफ़ दूर कर दे। तो इसमें साफ क्लियर कट है। अब आपकी समझ में ना आए तो आपकी अकल का कसूर है, आप इधर उधर बहाने मार रहे हैं या भाग रहे हैं कि हमने इलाह नहीं बना रखा। आप इलाह ना भी बनाएं तब भी आप ये क्वालिटी उसमें मानेंगे तो अल्लाह ताला तो कह रहा है आप जिसको भी ये क्वालिटी देंगे तो उसे आपने इलाह बना लिया है। आप कह रहे हैं हमने उन्हें खुदा नहीं बनाया, तो क्वालिटी क्यों मान रहे हैं आप उसमें ये वाली? जब आपने खुदा नहीं बनाया उन बुज़ुर्गों को तो आप उसमें ये क्वालिटी क्यों मान रहे हैं? खुदा वाली क्वालिटी क्यों मान रहे हैं आप उन बुज़ुर्गों में? ये आप छोड़ें फिर, यही तो शिर्क है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी अकल का कसूर है। पता नहीं आप क्या घास खाते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आती मेरी बात। ऐसा कोई है भाई? ये गलत बयानी करके आप बहकाते हैं। गलत बयानी नहीं, ये तो मैं आप कुरान का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। साफ साफ क्या है? साफ ये है कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और सुन के उस तकलीफ को दूर कर देता है तुम्हारी पुकार सुन के। हाँ, कैसे तुमने खुदा बना रखा है? अब इसके आगे बात में जाना, खुदा बना रखा है ये भी तो आ जाओ। नहीं, जिसने ये माना, अरे भाई क्यों गलत? जिसने भी ये माना कि तुम जिसे भी पुकार रहे हो और उसे समझ रहे हो कि ये हमारी तकलीफ दूर करेगा, तो अल्लाह ताला कह रहा है ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। अगर तुमने किसी के और के बारे में ये समझा कि ये भी तकलीफ दूर कर सकता है तो समझ लो उसे तुमने इलाह मान लिया। तो यही तो अल्लाह ताला कहना चाह रहा है इसमें। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं ये नहीं फरमा रहा है, ये आप अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा, अपनी तरफ से तो मैं कह ही नहीं रहा। नहीं, अल्लाह ने ये कहीं नहीं लिखा, वो नहीं फरमाया कि उसे तुमने इलाह मान लिया। अल्लाह ने ये फरमाया किसे तुम अल्लाह के सिवा खुदा समझते हो। ये अल्लाह के सिवा अल्लाह समझते हो, ये तो उसमें है ही नहीं। ये उसमें कहाँ है जिसे तुम अल्लाह के सिवा खुदा समझते हो? बना रखा है ये है, बना रखा ना ये है। आप क्या समझ रहे हैं? ये आयत से क्या समझे आप? उसका तर्जुमा तो साफ वाज़ेह है। क्या आयत में? उसमें साफ आया है कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और सुन के उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा बनाता है। अल्लाह ताला अपनी क्वालिटी गिनवा रहा है, अपने काम गिनवा रहा है कि कोई है जो बेकरार की दुआ सुन के और उसकी तकलीफ दूर कर दे और तुम्हें अगलों का खलीफा बना दे। तो अल्लाह के सिवा कोई और भी है ऐसी हस्ती? ये कह रहा अल्लाह ताला, अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती है ऐसी जो ये काम कर सकती है? ये कह रहा है इसमें अल्लाह ताला। आप क्या समझ रहे हैं इसमें? एक मिनट, ये बात जो आपने बताई कहाँ ये? अल्लाह मुझे फरमाता है कि
कौन है जो बेकरार की जो है दुआ पूरी करता है, तुम्हारी हाँ। तकलीफें दूर करता है, तुम्हें अगलों का खलीफा बना देता है, जिसे तुमने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखा है। ये फरमा रहा अल्लाह से। हद हो गई है। अब आगे ऊपर से आप अभी ऊपर से बताओ, अभी आपने ये आपने कहा सूरह कि नमल कौन आयत सी नंबर ऐसी 61 पढ़ी थी अभी, है? 61 पढ़ी थी अभी, आयत नंबर हाँ, 61 भी पढ़ी थी आपने, 62 भी पढ़ी थी आपने अभी। तो 61 में ही अल्लाह ताला ऊपर से अपनी क्वालिटी गिनवाता हुआ आ रहा है कि ये जो काम है, ये जो जमीन का बनाना है, ये जो चीजें हैं, ये अरे सारी। अल्लाह में तो ये सिफत है, अल्लाह हाँ। में तो ये सिफत है, वो तो सबकी मदद करता है, बस वही है। ठीक है, तो ये लेकिन जो आप अल्लाह मुझे ताला ये बता गिनवा दो रहा है, कि- ये जो अपनी सिफातें गिनवा रहा है, ये जो अभी आप अकीदा बयान कर रहे हो कि अल्लाह के सिवा तुमने किसी को पुकारा, उसे तुमने खुदा मान लिया, ये कहाँ पर ही आया अरे है? ये तो कुरान बता में दो कुरान भाई। कह रहा है, ये तो कहाँ कुरान कह कह रहा रहा है, सूरह है? नमल आयत कहाँ नंबर कह रहा 62 है? में कि कौन है कहाँ जो कह रहा है? बेकरार की दुआ सुनता है। अरे ये तो अल्लाह अपनी क्वालिटी गिनवा रहा है। हाँ। ये कहाँ आया कि तुमने खुदा मान लिया उसे? अरे मेरे भाई को हाँ। कह रहा है कोई और भी है ऐसा जो ये काम कर सके, यानी कि दुआ को सुने और तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। कोई और ऐसा है दुनिया में? अगर तुमने कोई नहीं जिसे है। भी ये माना है तो उसे तुमने इलाह बना लिया है अल्लाह को छोड़ के। ये अल्लाह ताला कह रहा है इसमें। अब तुम्हारी अकल का कसूर है, आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। गलत बयान कर दिया। तर्जुमा मेरे सामने कहो तो फिर से पढ़ दूं। तर्जुमा भाई मैंने 10 बार पढ़ चुका हूँ तर्जुमा, 10 बार क्या 100 बार पढ़ चुका हूँ तर्जुमा। तर्जुमा आपके सामने सही से पेश करता हूँ कि अल्लाह ये फरमाता है कि किसे तुमने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखा है। ठीक है, ये नहीं फरमाता अल्लाह उसे तुमने खुदा मान लिया है, ये नहीं तो फरमाता। ये है ही नहीं कि जैसे तुमने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखा है। कहाँ है ये? पढ़ लो, खुद पढ़ लो, फिर से पढ़ लो एक बार। पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैंने तो पढ़ रखा है। नहीं पढ़ लो एक बार, फिर पढ़ लो भाई। साफ साफ लिखा है कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और सुन के उसकी हाँ। तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी है जो ये काम कर सके? इसका ये और मतलब दोनों समझदारों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है जो ये काम कर सकता है? ये कहना चाहता अल्लाह ताला ये कह रहा है। तो ये क्यों कह रहे हो? ये फरमा रहा है ना अल्लाह, तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुमने बना रखा है? ये क्यों कह रहे हो? मतलब अल्लाह के सिवा कोई और ये काम कर सकता है? एक मिनट मेरी बात सुनो। आज एक बार फिर पढ़ूंगा तर्जुमा, आपको सही से समझ में आ जाए। ये तुमने उसूल बयान किया कि जिसको तुमने पुकार लिया उसे तुमने खुदा बना लिया।